Yeah. Hello students, today we are going to study a very important topic in the chemical equilibrium chapter, that is called Le-Chatelier principle. Le-Chatelier principle or Le-Chatelier principle. Okay, now we know the factors which affecting the position of a equilibrium, that is effect of concentration, the pressure, how it affect the position of equilibrium, next volume, next temperature, and last one is the addition of inert gases at constant pressure and at constant volume. ओके अभी हमको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ली चार्टलियर प्रिंसिपल. So what are the factors that governing the position of a chemical equilibrium? Number 1, concentration. Number 2, pressure. Number 3, volume. Number 4, temperature. Number 5, addition of inert gases under constant temperature, constant volume and pressure. Okay, अभी बच्चे हमको ये कौन सा फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स कैसे इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन को हमें पढ़ना है. ओके, नाउ हियर Le-Chatelier, who studied the factors that governing the position of a equilibrium, and he stated a important principle which is known as a Le-Chatelier's principle. Le-Chatelier's principle. Now what is the statement of the Le-Chatelier's principle? Now if a system at equilibrium is subjected to stress, then the position of equilibrium is shifted in that direction where the effect of the stress is either reduced or nullified. That means, suppose if a system is at equilibrium position, the system attains the maximum stability and minimum energy. Suppose if we try to apply some stress on the equilibrium position, then the equilibrium try to again re-establish its original equilibrium. To regain its equilibrium position, what happens? The stress has to reduce or nullify. During this, what happens? System either move in forward or backward direction. Again, it has to gain the equilibrium position. During this, what happens? The stress either reduces or completely nullified. अगर कोई भी सिस्टम आपके पास है, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा इक्विलिब्रियम पे हम कुछ ना कुछ स्ट्रेस अप्लाई करके कोई चीज़ को सिस्टम पे डाल रहे, तो सिस्टम ने क्या करेगा? अपना वर्जिनल इक्विलिब्रियम को वापस लाने के लिए कोशिश करेगा. एक कोशिश में क्या होता, वो सिस्टम जो फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में मूव होके जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, वो स्ट्रेस को या तो कम करना है या तो पूरे के पूरे रिड्यूस भी करना है या नलिफाई करना है. ठीक है, ऐसा सिस्टम आगे भी मूव हो सकता या पीछे भी मूव होने का चांसेस है. ओके, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट एंड लीस्ट एनर्जी स्टेट. ओके, एवरी सिस्टम ट्राई टू एक्वायर minimum energy and maximum stability. Are you getting my point? Now the alternative definition for the Le-Chatelier principle: when a reversible reaction at equilibrium is subjected to change in the concentration, pressure, temperature, etc., then the position of equilibrium will be shifted in that direction where the effect is either reduced or nullified. This is the second definition. Now in the first definition, what is the meaning of a stress? The stress nothing but you are applying some external agency. The external agency, that is by changing the concentration, by changing the pressure, by changing the volume, or by addition of some noble gases. Okay, so these are some stress. So the system is itself move in that direction where the applied stress or
अप्लाइड चेंज विल बी रेड्यूस्ड और नलिफाइड। सिस्टम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ जो चेंज हमने अप्लाई किया वो चेंज को वो सिस्टम अपने आप या तो रेड्यूस करना है, पूरे के पूरे न्यूट्रलाइज या नलिफाई करना है। करने के लिए सिस्टम उस डायरेक्शन पे जाएगा। मतलब सपोज अब अगर आप कोई भी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम पे है, अब वो सिस्टम में आपने क्या किया, कुछ कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया या रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन को आपने बढ़ाया, तो सिस्टम उस डायरेक्शन पे जाएगा जिस डायरेक्शन पे वापस अपना कॉन्सेंट्रेशन को जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाया या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो सिस्टम उस डायरेक्शन पे जाएगा ताकि जो आपने जो कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ाया उसको नलिफाई करना, रेड्यूस करना, उस डायरेक्शन पे सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ हियर लेट्स सपोज आपने सिस्टम को हीट दिया टेम्परेचर का फॉर्म में, तो सिस्टम उस डायरेक्शन पे जाएगा जो हीट दिया है, जो देने हीट को वो क्या करना है, नलिफाई करना है या रेड्यूस करना है, उस डायरेक्शन पे सिस्टम मूव करेगा। सपोज इफ रिएक्शन इज एंडोडर्मिक रिएक्शन, लेट्स सपोज वी आर अप्लाइंग सम हीट इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, तो सिस्टम एंडोडर्मिक है तो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो सिस्टम एनर्जी को दिया तो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्व करके वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोडर्मिक का रिएक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा कोई भी चीज़ आप सिस्टम पे डालेगा या तो सिस्टम से निकालेगा तो सिस्टम अपने आप रीएडजस्टमेंट होके वापस दोबारा नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ हियर we know the direction of the equilibrium. Now QC and KC, we know in the last videos we derived some relation between QC and KC. QC is the reaction coefficient, which is nothing but the product of the concentration of the products divided by the product of the concentration of the reactants. Now KC is the equilibrium constant. The KC value depend only on the temperature, but the QC is not depend on the temperature, it is a variable quantity, okay, except at equilibrium condition. At all other conditions the concentrations ratio is a reaction coefficient, that is called QC. If the QC value less than the KC, then the equilibrium shifted in that direction where the products are formed. That means forward direction takes place. Are you getting my point? Number 2, if the QC greater than KC, that means KC will be small, then immediately the reaction moves in that direction towards the reactant side, that means backward direction. If QC and KC both are equal, then the system is already attained the equilibrium. So यहाँ reaction coefficient QC है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, ये दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्यूसी का वैल्यू कम है, केसी का वैल्यू ज़्यादा है, इनडायरेक्टली you see Kc value is very high. If the Kc value is very high, then equilibrium shifted in forward direction, that means products will be formed. अगर Qc का वैल्यू ज़्यादा है, Kc का वैल्यू कम है, मतलब Kc का वैल्यू कम है, Qc का वैल्यू ज़्यादा है, तो Qc वैल्यू Kc को बराबर इक्वल होना है, तो सिस्टम किस डायरेक्शन पे जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे आएगा, जो बैकवर्ड डायरेक्शन पे आपको रिएक्टेंस मिलेगा। और गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर Qc Kc दोनों भी बराबर इक्वल है तो सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स both forward and backward reaction continue to take place with equal rates. Are you getting my point? Now let's see the first factor which affecting the position of the equilibrium, that is called effect concentration. Now what is the effect of change of concentration on the position of the equilibrium? Now here there are 2 points given here. The first point is the increase in the concentration of the reactants or decrease in the concentration of the products. The system will move in forward direction and products will be formed. That means अगर आप सिस्टम में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को घटा दो, तो सिस्टम उस डायरेक्शन पे जाएगा जिस डायरेक्शन पे वापस उसको जिस डायरेक्शन पे जाएगा
दैट इज फॉरवर्ड। कौन सा डायरेक्शन पे जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाए, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे इसलिए जा रहे, आपने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे, सो सिस्टम रोने लगेगा, मुझे मेरा प्रोडक्ट्स वापस होना बोल के, तो सिस्टम उस डायरेक्शन पे जाएगा जिस डायरेक्शन पे उसको दोबारा प्रोडक्ट्स मिल सकता है। तो प्रोडक्ट्स मिलने का डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव हो जाएगा। या तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपने सिस्टम में बढ़ाया, तो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से सो सिस्टम फॉरवर्ड में जाएगा, ताकि वो जो जितना आपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया वो सब्सिक्वेंटली रिड्यूस या नलिफाई हो जाएगा, तो फिर दोबारा सिस्टम अपने आप एक नया इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। ओके। दूसरी बात, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स or increase in the concentration of the products, the system will tend to move in reverse direction, that is backward direction. That's why you will have left side reaction, that means reactant side, the system move in reactant side, that means अभी इसका रिवर्स है। अभी इसके पहले आपने क्या किया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया या तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को घटाया, तो सिस्टम किस तरफ शिफ्ट हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। अब इसका रिवर्स डायरेक्शन देखो, रिवर्स टेंडेंसी देखो। अगर आपने सिस्टम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को घटाया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को घटाने से सिस्टम फिर दोबारा अपना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए सिस्टम किस तरफ मूव होना, बैकवर्ड डायरेक्शन पे आना पड़ेगा। सो सिस्टम will tend to move in reverse direction or backward direction. Are you getting my point? Now we will see by one example. Now hydrogen combine with, this is iodine, hydrogen combine with iodine to give hydrogen iodide. Okay. Now the forward reaction, nothing but the formation of hydrogen iodide, is favorable by increasing of concentration of reactant which is known as hydrogen and iodine. Just now I told you, अगर आप सिस्टम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव होगा, इन द एबो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर्मेशन ऑफ HI। ओके। और दूसरी बात क्या है, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। अगर आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को कम करो तो दोबारा कोशिश करेगा सिस्टम HI का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का। HI का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए सिस्टम तो फॉरवर्ड में ही जाना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल। नंबर 2, बैकवर्ड रिएक्शन विल अकर्स, दैट इज नथिंग बट द डिसोसिएशन ऑफ HI। It is favorable by increasing the concentration of HI, otherwise decrease in the concentration of H2 and I2। अगर आप सिस्टम में HI का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो जो HI का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने से दोबारा सिस्टम ऐसा कोशिश करेगा जो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, तो HI कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए वो वापस दोबारा रिटर्न बैक होके H2I2 में कन्वर्ट होना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो आप सिस्टम में से H2I2 को कम कर दो, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को कम किया तो दोबारा सिस्टम ऐसा कोशिश करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने की, सो दोबारा रिएक्शन बैक साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ हमें पता है फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट QC विल बी इक्वल टू द concentration of the products divided by the concentration of the reactants. Okay, let's suppose we have small a moles of reactant hydrogen and small b moles of another reactant iodine and small c moles of product HI at equilibrium. The container volume, the system volume, let's suppose V liters. Okay, now what is the active mass, what is the molarity, number of moles per liter, so number of moles of HIC divided by volume, C by V is the HI concentration, C by V whole square whole divided by concentration of H2 A by V into concentration of I2 B by V. So here V square gets cancelled, Kc is equal C square by AB. This is called equilibrium constant. This is called what? Equilibrium constant in molar concentration. Now here, just now I told you, increase in the concentration of the reactants or decrease in the concentration of the products, equilibrium shifted in the forward direction.
अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को घटा दो, सिस्टम आगे शिफ्ट होगा राइट साइड में। उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करना है। सपोज हमने क्या किया, सिस्टम में डी मोल्स का हाइड्रोजन को ऐड किया। ए बी सी ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI। सो हमने लिया स्मॉल डी मोल्स ऑफ H2 एडेड एट द रिएक्शन मिक्सचर। जब आपने सिस्टम में हाइड्रोजन को ऐड किया तो इमीडिएटली इक्विलिब्रियम अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो तब हम QC लिखते, KC का नहीं लिखते, क्योंकि QC इज ए वेरिएबल बट KC इज ए कांस्टेंट। अनलेस until temperature do not changes, KC remains constant. Now here in the QC expression similar to KC expression, okay, CV whole square by, अब देखो डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर बाय वॉल्यूम है ना। अब इसमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल एट इक्विलिब्रियम में कितने मोल्स है, स्मॉल ए मोल्स। अब मैं डी मोल्स ऐड किया तो ओवरऑल मुझे ए प्लस डी मोल्स आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन में दिस इज द QC एक्सप्रेशन, जो ऊपर आपके पास KC का एक्सप्रेशन ये है। अब ये दोनों का कंपैरिजन में हियर डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, दैट मीन्स QC वैल्यू डिक्रीजेस। सो QC वैल्यू कंपेयर टू KC डिक्रीजेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स KC वैल्यू कम है, QC वैल्यू ज़्यादा है। सिस्टम टेंड टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। QC कम है, KC का वैल्यू ज़्यादा। KC रिमेंबर, KC वैल्यू मोर देन फॉरवर्ड रिएक्शन। Simple technique. When the KC value is high, forward reaction. If the KC value is low compared to QC, then backward reaction. If both are equal, then system already attained at equilibrium. ये बात पक्का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Now, instead of number of moles of hydrogen adding, I am taking next condition here. Let's suppose d moles of HI removing from the equilibrium system. अभी हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया बाय एडिंग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, अदरवाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को हटाना। लेट्स सपोज डी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज HI रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, देन द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी डिस्टर्ब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम C मोल्स, उसमें से हमने D मोल्स को हटाया तो बचा हुआ मोल्स कितना, C माइनस D। ओके, now here in the numerator you have C minus D. Now come to QC expression, here is there, and KC expression. QC expression and KC expression. In this what happens, if you observe, in the numerator value decreases, that means QC value decreases compared to whom, KC. So QC value KC से कम है, मतलब KC का वैल्यू ज़्यादा है। अगर KC का वैल्यू ज़्यादा है तो ये कि फंडा है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये दोनों में हमने क्या किया, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया या HI का कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन को हम कम कर रहे। लेट्स सपोज concentration of hydrogen decreases. How? By removing the number of moles of hydrogen. Let's suppose d moles of hydrogen is removed from the system. D moles of hydrogen is removed from the system. Now hydrogen moles is small a, so उसमें से हमने d moles of hydrogen को हटाया तो remaining moles कितना बचेगा, डिनोमिनेटर में a minus d moles बचेगा। Are you getting my point? Now here again the QC value, if you compare to the KC value, here in the QC value denominator value decreases, that means QC value increases compared to whom, KC. That means KC value decreases and QC value increases, that means the system tend to move in backward direction. मैंने अभी बताया KC वैल्यू कम है तो बैकवर्ड रिएक्शन, अगर KC वैल्यू ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, नाउ कम टू, अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के वजह से आपने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। लेट्स सपोज सिस्टम एट इक्विलिब्रियम में है, C मोल्स HI पहले से इक्विलिब्रियम था, अब मैं D मोल्स HI उसको ऐड किया।
ओके। नाउ न्यूमरेटर में C कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। अब मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके D मोल्स ऐड किया HI, तो टोटल मोल्स ऑफ HI कितना हो गया, C प्लस D। सब न्यूमरेटर का वैल्यू C प्लस D हो गया, तब मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कंपेयर टू डिनोमिनेटर। सो QC का वैल्यू दोबारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। QC का वैल्यू इंक्रीज हो गया मतलब KC का वैल्यू कम है। KC का वैल्यू कम है तो मैं अभी आपको बताया था बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है बोल के। सो ये 4 केसेस आपको इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में लेके जाना या बैकवर्ड में लेके आना। एक्चुअली ये 4 केसेस को हमने 2 ही केसेस बनाया, वो 2 केसेस, ये 2 केसेस है। पहला केस ये, दूसरा केस क्या है, बी। पहला केस में क्या बताया मैंने, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका डेड ऑपोजिट आप उल्टा लिखना पड़ेगा बी केस का अंदर। उसमें क्या लिखते हम, डिक्रीजिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स फेवरेबल द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चारों को हमने एक एक एग्जाम्पल, एक एक एप्लीकेशन लेके हमने चारों को यहाँ समझा दिया। ओके और इसका कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ लिया। ये क्वेश्चंस का भी अब आंसर क्या क्या है चेक कर लेंगे। हमको ये पक्का एक बात इम्पॉर्टेंट क्लियर होना चाहिए, ये नोट जो मैंने लिखा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है। द टर्म्स विच इन्वॉल्व इन द KC and KP expression are only affect the position of the equilibrium. In the sense, the terms which are not appear in the KC and KP, they do not disturb the position of the equilibrium. जो हमने KC KP एक्सप्रेशन में जो टर्म्स लिखते वही टर्म्स इक्विलिब्रियम का पोजीशन को चेंज कर सकते। जो टर्म्स KC KP का अंदर नहीं रहता उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये बात पक्का आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, द डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 limestone, okay, reached equilibrium, okay. Now some more CaCO3 added to the equilibrium mixture, then what happens? The equation CaCO3 gives CaO plus CO2. CaCO3 एक्चुअली क्या है, वो रिएक्टेंट की साइड है। अगर आपने रिएक्टेंट का साइड में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली आपने क्या सोचते, सिस्टम मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO बढ़ना चाहिए, CO2 भी बढ़ना चाहिए, तो प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट साइड, वो भी सही है, जनरली व्हाट वी एक्सपेक्ट, बट दिस 2 आर इनकरेक्ट। जस्ट नो आई टोल्ड यू, आप इसका KP एक्सप्रेशन लिखना। पहले KP का एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ CO2 का ही एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का दोनों प्योर सॉलिड्स है, तो सॉलिड के लिए हम एक्टिव मास यूनिटी लेते, उसको एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। जो KP के एक्सप्रेशन में या तो KC के एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे उसका ही इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो CaCO3 डू नॉट affect the position of equilibrium, do not affect the position of equilibrium. The first option, the equilibrium shifted to right side, CaCO3 ऐड करो निकाल दो, CaO को ऐड करो निकाल दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। अगर थर्ड ऑप्शन में ध्यान से दिखे तो द प्रेशर ऑफ CO2 विल इंक्रीजेस, द प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस, उससे भी कोई फर्क आने वाला नहीं है। The position of equilibrium remains unchanged. Yes, this is the correct option, because in the option, if you add CO2, if you subtract the CO2, then only the position of equilibrium will be affected, because CO2 will be present in the KP और KC expression. ये बात पक्का आपको क्लियर होना चाहिए। जो KP KC एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म्स रहता वही टर्म्स इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वैसा ही और एक क्वेश्चन भी हमारे पास है, लाइमस्टोन डिकम्पोजिशन टू गिव अगेन CaO एंड CO2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। द प्रेशर ऑफ ए CO2 गैस डिपेंड ऑन, प्रेशर ऑफ CO2 गैस डिपेंड ऑन मास ऑफ CaCO3, मास ऑफ CaO,
उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अभी बताया दोनों प्योर सॉलिड से उसको एक्टिव मास यूनिटी लेते हम। अब Kp के एक्सप्रेशन जब ऊपर लिखे तो PCO2 प्रेशर ऑफ CO2 गैस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ये सिस्टम आपको पता है एंडोधर्मिक है, बिकॉज आपने हीट किया तब भी ये CaCO3 टूटेगा। जब CaCO3 टूटना तो हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एंडोधर्मिक है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना या घटना, तो डिसोसिएशन आपको टेम्परेचर का डिपेंडेंट है, बिकॉज Kp Kc सिर्फ ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एसिटिक एसिड dissociation CH3COO gives equilibrium gives CH3COO minus and H plus. A small amount of a sodium acetate is added. What is the formula of sodium acetate? CH3COONA. Sodium acetate is a salt of weak acid, acetic acid and strong base sodium hydroxide. अगर ये पानी में डिसोसिएट हो गया तो ये ऐसा टूटेगा एस्टेट आयंस में और H प्लस Na पॉजिटिव आयंस में टूटेगा। इसका मतलब यहाँ भी आपको एस्टेट आयंस है, पहले से सिस्टम में भी एस्टेट आयंस है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली यू आर एडिंग द एसिटेट आयंस। दैट मीन्स इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस द सिस्टम ट्राई टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिस्टम किस तरफ मूव होगा, शिफ्ट होगा? बैकवर्ड, बिकॉज एस्टेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। अगर सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आएगा तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? द एसिड डिसोसिएटेड फर्दर। अगर एसिड डिसोसिएट हुआ तो फॉरवर्ड में जाना, क्योंकि एसिटिक एसिड डिसोसिएटेड इनटू एस्टेट आयंस एंड H प्लस। Okay, first option is incorrect. The H plus ion concentration increases, it is also incorrect, because अगर एसिड का डिसोसिएशन बढ़ेगा तब भी H plus बढ़ेगा, मगर वो फॉरवर्ड में होना, मगर सिस्टम बैकवर्ड में आ रहा। द एसिड डिसोसिएशन सप्रेस्ड, दैट मीन्स डिक्रीजेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते, जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बॉक्स कंटेन COCl2 and COCl2. COCl2 is a poisonous gas. Okay, equilibrium at 1000 Kelvin. CO plus Cl2 equilibrium COCl2. Now here the removal of CO, आपने क्या किया? CO को हटाया। अगर CO को हटाने से सिस्टम रोने लगेगा, मेरा CO मुझे वापस होना, मेरा CO मुझे वापस होना बोल के, तो CO दोबारा वापस आने के लिए सिस्टम आपको बैकवर्ड डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा, तब भी आपका COCl2 डिकम्पोज होके CO प्लस Cl2 बनेगा। जब सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl2 ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 100%, क्योंकि जब रिएक्शन बैक साइड में आएगा तो CO का कॉन्सेंट्रेशन Cl2 दोनों का भी बढ़ेगा, बट ऑप्शन 2 में तो ओनली Cl2 का दिया तो वो सही है। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl2 वो गलत है, वो तो डिक्रीज होना ही पड़ेगा क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन पे आ रहा। रेड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO एज वेल एज Cl2 वो गलत है। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ CO एंड Cl2, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकेंड ऑप्शन भी सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ when NaNO3 is heated, next question, when NaNO3 is heated in a closed vessel, oxygen is liberated and NaNO2 will be left. Yes, here the equilibrium reaction is given to you. Just now I told you the solid substances do not affect the position of the equilibrium. So if you want to write the Kp expression, only we have to write the partial pressure of oxygen to the power 1/2. Because NO2, NaNO3 both are pure solids, they do not appear in the Kp expression. Okay, now addition of NaNO2 reverse the reaction. Generally we expect the product concentration increases, equilibrium has to shift backward direction. Second option, addition of NaNO3, that is the reactant, favors the forward reaction. This is only valid when
दैट स्पीसीज अपीयर इन द केसी और केपी एक्सप्रेशन। जो स्पीसी केसी केपी एक्सप्रेशन पे दिखेगा वही स्पीसीज इक्विलिब्रियम को पोजीशन को शिफ्ट कर सकता, गवर्निंग कर सकता। ओके, अदरवाइज दे डू नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों गलत है। नाउ द नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये तो सही है, क्योंकि डिकम्पोजिशन टूटना जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है तो उसको हम एंडोधर्मिक बोलते। सो एंडोधर्मिक रिएक्शन फेवरेबल बाय हीट एब्जॉर्प्शन। जब आप टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एंड वन मोर ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, इफ यू सी इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर ऑफ O2 गैस फेवर्स द रिवर्स रिएक्शन। यस, अब सिस्टम में O2 है, O2 Kp एक्सप्रेशन में है। अगर आपने राइट साइड कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली बैकवर्ड में शिफ्ट होना जरूरी है। यस, द सिस्टम विल टेंड टू मूव इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर इंक्रीजेस। सो दिस इज आल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 and 4 बोथ आर करेक्ट है। ठीक है, और वन मोर क्वेश्चन है, वी हैव मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आयोडाइड आयन एंड वाटर, Hgi4 2 minus, Hgi4 2 minus 2OH minus. Which changes will decrease the equilibrium concentration of Hgi4 minus 2? So Hgi4 minus 2 concentration को क्या करना, कम करना। तो कम करने के लिए सिस्टम किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन पे सिस्टम आना जरूरी है। जब बैकवर्ड डायरेक्शन पे आने के लिए पहला ऑप्शन में एडिशन ऑफ एसिड, सपोज आपने एसिड ऐड किया, एसिड में से जो H+ निकला, ये H+ क्या करेगा, जो वहाँ सिस्टम में OH- है इसको ख़त्म करेगा। जब OH- को ख़त्म करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तो फॉरवर्ड में गए तो फिर Hgi4 - 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, मगर हमारा क्वेश्चन में जो कम होना बोल रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो। दूसरा ऑप्शन एडिशन ऑफ वाटर, वाटर तो लेफ्ट साइड में है, वो भी नहीं है। रिमूवल ऑफ HGO, वो भी नहीं है। एक्चुअली HGO सॉलिड है, इसलिए उसका इफेक्ट कोई भी नहीं रहता। और फोर्थ ऑप्शन है एडिशन ऑफ आल्कली, KOH। यस, अगर KOH का कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ाने से तुरंत सिस्टम वापस रिवर्स डायरेक्शन पे आएगा, तो आवर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ओके, नाउ we are going to discuss the second effect. This is the pressure effect, very important. Pressure effect is very important. Now the pressure effect is only applicable for the pressure effect is only applicable those chemical reactions in which delta Ng not equal to 0. This is very important. What is the delta Ng? Number of gaseous moles of products minus total number of moles of gases. We know what is the delta Ng? Delta Ng equal to sum of the number of moles of gaseous products minus sum of the number of moles of gaseous reactants. This is very important. Okay, now here अगर डेल्टा Ng का वैल्यू 0 है, मतलब सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, देन सच रिएक्शंस there will be no pressure effect on the position of the equilibrium. On the left hand side, on the right hand side, number of gaseous moles are same, then there will be no pressure effect. If you increase the pressure or decrease the pressure, there is no effect on the position of the equilibrium. ये बात पक्का क्लियर होना है। प्रेशर इफेक्ट कौन सा रिएक्शन पे इन्वॉल्व रहता, जिसका अंदर नंबर ऑफ मोल्स का चेंज होना जरूरी है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, दैट टू गैस स्टेट में। ओके, now let's suppose first we have N2 plus O2 gives 2NO and 2HI gives H2 and I2. In these two reactions delta Ng value है, delta Ng value 0। कैसे? number of moles of gaseous products NO 2 moles है और reactant 1 + 1 2 mole है, और दूसरी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स 2 है और रिएक्टेंट भी 2 मोल है HI, तो चेंज विल बी 0। So there will be no pressure effect on the position of the equilibrium. This is very important. Now कौन सा रिएक्शन में आपका प्रेशर इफेक्ट काम करेगा,
जिसका अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी सेम और इक्वल। लेट सपोज हमारे पास PCl5 है, वो टूट के PCl3 बना और Cl2 भी बना। इसमें 2 मोल का प्रोडक्ट है, 1 मोल का रिएक्टेंट है, तो आप डिफरेंस देखें तो 1 मोल है डेल्टा Ng। और दूसरी बात है N2 1 मोल है, H2 3 मोल है, 4 मोल मिलके 2 मोल का अमोनिया बन रहे, तो सिस्टम में डेल्टा Ng का वैल्यू 2 - 4 दैट इज -2। ये दोनों केसेस में डेल्टा Ng वैल्यू नॉन जीरो है, सो इसका अंदर ही आपका प्रेशर इफेक्ट काम करेगा, इसका अंदर ही प्रेशर इफेक्ट आपको अप्लीकेबल है। ओके, नाउ अब प्रेशर इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 केसेस है, एक बार प्रेशर को बढ़ाना और एक बार प्रेशर को घटाना। इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर the equilibrium shifted in that direction where there is a decrease in the number of moles of gaseous molecules or number of gas molecules or moles of gas molecules. Are you getting my point? Once again, if external pressure on the reaction mixture increases, the reaction tend to move in that direction where the volume will be decreases or number of moles will be decreases, गैस मोल्स या गैस मॉलिक्यूल्स विल बी डिक्रीजेस। इसको आपको समझाने के लिए सिंपल सा टेक्निक है, जब तक हम टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे तो टेम्परेचर हमेशा कैसे होगा, कांस्टेंट ही होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें पता है बॉयल्स लॉ PV = क्या है, कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, ये बात पक्का क्लियर होना। ओके, आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दैट मीन्स सिस्टम विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर देयर इज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम, और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, बिकॉज वॉल्यूम फॉर गैसेस indirectly depend upon the number of moles. Are you getting my point? So where there is a decrease in the volume or where there is a less number of moles. Are you getting my point? Now the exactly reverse, if you decrease the external pressure, then the equilibrium will be shifted in that direction where there is a increase in the volume or increase in the number of moles of gases, where the number of moles of gases will be increases, where the volume will be increases, to that direction only system try to move. So this is very important, very simple, pressure inversely proportional to volume। अगर आप प्रेशर को बढ़ाया तो सिस्टम उस डायरेक्शन पे जाएगा जिस डायरेक्शन पे वॉल्यूम कम होगा। अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया तो प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, सिस्टम उस डायरेक्शन पे जाएगा जिस डायरेक्शन पे वॉल्यूम बढ़ेगा। Are you getting my point? Now here these are the 2 valuable points given here. What are the 2 valuable points? If the delta Ng value positive, delta Ng value positive in the sense right side number of gaseous moles more and left side will be less। इसका मतलब राइट साइड में जो प्रोडक्ट साइड में गैसेस मोल ज़्यादा है, रिएक्टेंट का साइड में कम है। अगर राइट साइड में गैसेस मोल ज़्यादा है, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो सिस्टम उस तरफ से जाएगा जिस तरफ में वॉल्यूम या मोल्स कम होना। मोल्स किधर कम है, लेफ्ट साइड कम है, लेफ्ट साइड कम है, इसलिए रिएक्शन बैक साइड जाना ज़रूरी है। अगर आपने गलती से या प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम किधर ज़्यादा है, उस तरफ जिधर मोल्स ज़्यादा है। किधर मोल्स ज़्यादा है, राइट हैंड साइड, तो सिस्टम मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वंस अगेन, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट साइड का नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है गैसेस का, लेफ्ट साइड का गैसेस का मोल्स दैट इज़ रिएक्टेंट का साइड कम है। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम होना, वॉल्यूम कम होने के लिए गैस का मोल्स कम होना। गैस का मोल्स किधर कम है, लेफ्ट साइड में, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है। या तो अगर आप प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ना चाहिए,
वॉल्यूम किधर बढ़ेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। किधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, राइट साइड ज़्यादा है, इसलिए सिस्टम आपको राइट साइड में शिफ्ट होगा, दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये बहुत पक्का क्लियर होना। दूसरी बात, डेल्टा एन जी नेगेटिव। डेल्टा एन जी नेगेटिव कब हो सकता, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है। क्योंकि अभी मैंने आपको डेल्टा एन जी का फार्मूला बताया, फिर भी मैं यहाँ लिख रहा, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू total number of moles of gaseous products minus total number of moles of gaseous reactants। दोनों में गैसियस ही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। कोई भी प्योर सॉलिड है, कोई भी प्योर लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन, उसका मोल्स को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब डेल्टा एन जी नेगेटिव कब हो सकता, रिएक्टेंट का मोल्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मोल्स कम है। नाउ अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम किधर कम है, वॉल्यूम किधर कम है, आपको जनरली इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर फेवर्स वेयर इज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसमें डेल्टा एन जी नेगेटिव आया तो वॉल्यूम आपको लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है, राइट साइड में कम है, तो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है, राइट साइड में कम है, तो अब सिस्टम आपको जिस तरफ वॉल्यूम कम है राइट साइड उस तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम किधर ज़्यादा है, वॉल्यूम किस तरफ ज़्यादा है, रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा है, दैट इज़ बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रेशर इफेक्ट को आराम से लिख सकते। ओके, सिंपल सा फंडा। ये केस 1 केस 2 दोनों को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा आपको। प्रेशर को बढ़ाने से सिस्टम उस तरफ जाएगा जिस तरफ से वॉल्यूम कम होना या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम होना, या प्रेशर को कम किया तो सिस्टम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ से वॉल्यूम बढ़ेगा या नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ेगा। बस ये दो ही केसेस है। ओके, अब इसके लिए हमको मैथमेटिकली भी इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। नाउ PCl5 gives PCl3 plus Cl2। सपोज इक्विलिब्रियम पे मेरे पास स्मॉल ए मोल्स ऑफ PCl3, स्मॉल बी मोल्स ऑफ स्मॉल ए मोल्स PCl5, स्मॉल बी मोल्स PCl3 एंड स्मॉल सी मोल्स ऑफ Cl2 गैस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, लेट्स सपोज। ओके, नाउ व्हाट इज द Kp एक्सप्रेशन हियर। नाउ हियर आई एम राइटिंग स्मॉल ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए मोल्स कैपिटल बी है सिस्टम में, और स्मॉल सी मोल्स कैपिटल सी, स्मॉल डी मोल्स का कैपिटल डी है। अब इसका Kp एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कौन है, C टू द पावर C स्टैचोमेट्री, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर। ये C D A B जो भी है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है। ओके, नाउ P total divided by N total whole to the power delta Ng. This is a very important relation. Okay, now here what is the product here, B। B का मोल्स कितना है, स्मॉल b, PCl3 का मोल्स कितना है, B टू द पावर कितना है स्टाइकोमेट्री 1, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। और Cl2 का मोल्स कितना है, C, उसका स्टाइकोमेट्री कितना है 1, वो भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। होल डिवाइडेड बाई PCl5 का मोल्स कितना है, ये उनका स्टाइकोमेट्री भी 1 है, ये 1 1 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। इनटू टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम में लेट सपोज P ले लो, बाई टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे A प्लस B प्लस C, टोटल A प्लस B प्लस C होल टू द पावर डेल्टा Ng। व्हाट इज द डेल्टा Ng हियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये हमारा Kp का एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना। कैसे डिस्टर्ब करना, बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर और डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, बिकॉज वी आर डीलिंग विद प्रेशर इफेक्ट। सपोज हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। सपोज जब प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगा, तब हमको लिखना पड़ेगा QP, B C ये उतना ही मोल से। अब इसमें फ़र्क कहाँ पड़ेगा आपको, प्रेशर में पड़ेगा। प्रेशर P है, अब P प्लस सम स्मॉल p, ओके, दैट मीन्स जितना भी प्रेशर है, अब ये प्रेशर न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ गया। इसका मतलब जो ऊपर का Kp एक्सप्रेशन QP एक्सप्रेशन से कंपेयर किया तो
QP का वैल्यू न्यूमरेटर में बढ़ गया, तो ओवरऑल QP का वैल्यू KP से कैसे है, ज़्यादा है। मैंने अभी आपको बताया अगर KC का वैल्यू छोटा है तो सिस्टम बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, KC और KP। और गेटिंग माई पॉइंट, दैट मीन्स ये सिस्टम में आपने प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम किधर शिफ्ट हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये सिस्टम में ध्यान से देखो, राइट साइड में आपको मोल्स ज़्यादा है, आपने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज़ किया। प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या मोल्स कम होना। मोल्स किधर कम है, आपको लेफ्ट साइड में 1 मोल है PCl5, राइट साइड में 2 मोल है PCl3 Cl2। तो सिस्टम आपको किस तरफ शिफ्ट हो रहा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रहा। ये बात पक्का क्लियर है। या इसका रिवर्स में सोचो, अगर आपने लेट्स सपोज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर को क्या किया, कम कर दिया, मतलब न्यूमरेटर में P माइनस स्मॉल p, दैट मीन्स ओवरऑल QP के एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर का वैल्यू कम हो गया, तो QP का वैल्यू KP से क्या हो गया, कम हो गया। मतलब KP का जो वैल्यू ज़्यादा है तो सिस्टम किधर शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। और गेटिंग माई पॉइंट, अदरवाइज आपने ऐसा सोचो, प्रेशर को आपने क्या किया, कम कर दिया। प्रेशर को कम कर दिया तो सिस्टम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ गैसियस मोल्स या वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम किधर ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड का मतलब आपका सिस्टम किधर शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा आप दूसरे एग्जाम्पल N2 3H2 gives 2NH3, इसको भी लेके एक्सप्लेन कर सकते। इसमें 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है। तो आपको लेफ्ट साइड में टोटल 4 वॉल्यूम है, राइट साइड में गए तो 2 ही वॉल्यूम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला केस में क्या किया, आपने प्रेशर को बढ़ाया। प्रेशर को बढ़ाने से सिस्टम का वॉल्यूम कम होना चाहिए, उस तरफ से शिफ्ट होगा। वॉल्यूम किधर कम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, तो सिस्टम आपको फॉरवर्ड में मूव होगा। ये हेबर प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया है। वी विल डिस्कस इन द एप्लीकेशंस ऑफ ली शार्टलियर प्रिंसिपल। ओके, अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया, तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम किधर ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में, तो बैकवर्ड रिएक्शन होना। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अमोनिया फॉर्मेशन अकर्स। अगर आपने प्रेशर को कम करके वॉल्यूम को बढ़ाया इनडायरेक्टली, तो बैकवर्ड रिएक्शन में डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस। यहाँ भी ये PCl3 PCl5 का केस में आपने पहले प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम कम होना, लेफ्ट साइड में कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? PCl5 फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। दूसरे केस में आपने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन में PCl5 डिकम्पोजेस। PCl5 what happens, decomposes. Okay, now we will see some questions. In which of the following equilibria the position of equilibrium shifted towards product if the total pressure increases? प्रेशर इंक्रीज किया तो क्वेश्चन में आपको प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किस तरफ वॉल्यूम कम है, सिस्टम उस तरफ जाना चाहिए। मगर क्वेश्चन में सिस्टम किधर शिफ्ट होना बोल रहे, टुवर्ड्स प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का साइड में मोल्स कम होना चाहिए। प्रोडक्ट का साइड में मोल्स कौन सा ऑप्शन में कम है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो 4 मोल का रिएक्टेंट है, 2 मोल का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मोल्स कम है, तो सिस्टम फॉरवर्ड में ही जाएगा जब प्रेशर बढ़ाने से। तीसरे में कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं रहता। फोर्थ में क्या होता, सिस्टम में जो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होना तो लेफ्ट साइड में कम है, तो ये बैकवर्ड में फेवरेबल रहता। ये पहला रिएक्शन आपको फॉरवर्ड में फेवरेबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, मतलब आपको जब PCl5 का डिकम्पोजिशन देखे तो
PCl5, how it dissociated? As a PCl3 plus Cl2. All are gases. All are gases. Now the degree of dissociation of PCl5, मतलब आपको फॉरवर्ड रिएक्शन पूछ रहा. इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होना तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे आना. बैकवर्ड में आ गए तो डिसोसिएशन घटेगा. रिमेंबर, फॉरवर्ड में बढ़ेगा, बैकवर्ड में घटेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर नहीं है. सेकंड ऑप्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. आपने क्या किया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू डिक्रीज होना जब प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ में वॉल्यूम कम होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ हियर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. प्रेशर बढ़ाने से, यस दिस इज करेक्ट. आपने क्या किया? प्रेशर को बढ़ाया. प्रेशर को बढ़ाने से सिस्टम का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. सिस्टम का वॉल्यूम कम होना चाहिए तो सिस्टम किधर शिफ्ट होना चाहिए? बैकवर्ड में. जब सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ गया तो डिक्रीजेस. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वंस अगेन हियर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5. व्हाट हैपेंस? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने के लिए फॉरवर्ड में जाना है. ओके आपने फॉरवर्ड में जाने के लिए प्रेशर को कम करना है. प्रेशर को क्या करना है? कम करना है. तो प्रेशर को डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर को कम किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना चाहिए. तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम पीछे शिफ्ट हो जाएगा. पीछे शिफ्ट हो गया तो DOT घटेगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन. बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल बाय इंक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. आपको प्रेशर को बढ़ाया. प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होना तो सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आने के लिए कौन सा ऑप्शन में वॉल्यूम कम है? लेफ्ट साइड में. तो फोर्थ ऑप्शन में वॉल्यूम कम है. ध्यान से देख लो. फर्स्ट ऑप्शन में लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट साइड कम है. आपने प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम वॉल्यूम कम होना दैट इज राइट साइड में जाना है. तो क्वेश्चन में बोल रहा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन बोल के. तो सेकंड ऑप्शन में तो प्रेशर इफेक्ट N2 + O2, यहाँ आपको 2NO होना चाहिए. तो दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक. 2NO, देयर इज नो प्रेशर इफेक्ट. थर्ड ऑप्शन में अगर आपको प्रेशर को बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड में जाएगा. अभी बताया मैंने हेबर प्रोसेस बोल के. फोर्थ ऑप्शन में जब बैकवर्ड रिएक्शन में आने के लिए वॉल्यूम कम होने के लिए प्रेशर को इंक्रीज करना चाहिए तो वॉल्यूम कम होने का डायरेक्शन पे जाएगा. दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके. नाउ द रिएक्शन इन विच द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द हाई प्रेशर. सो प्रेशर बढ़ाने से भी आप यील्ड को चेंज नहीं कर सकते. मतलब देर इज नो प्रेशर इफेक्ट. सो इन विच केस देर विल बी नो प्रोजेक्ट दोज रिएक्शंस इन विच डेल्टा Ng वैल्यू इक्वल टू 0. सो देर विल बी नो प्रेशर इफेक्ट. देर विल बी नो प्रेशर इफेक्ट. So out of the 4 options where the delta Ng value equal to 0, this is the second option. Are you getting my point? Now next question. In the reaction of A gas plus B gas gives C gas, the backward reaction is favored. Backward reaction favored means in left hand side 1 volume plus 1 volume, right side only 1 volume. That means 2 volumes giving 1 volume. Are you getting my point? Left side में volume ज़्यादा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बैकवर्ड रिएक्शन आने के लिए प्रेशर को कम करना पड़ेगा. सो प्रेशर को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर क्या है? 2. क्योंकि जब आप प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. वॉल्यूम बढ़ने का लिए आपको सिस्टम किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन पे सिस्टम शिफ्ट होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Next, which of the following reaction will be favored at low pressure? Low pressure. Here,
when the favor means in which direction favored, generally favored means forward direction, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन पे प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। राइट साइड में किसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होना, तो फोर्थ ऑप्शन है। क्योंकि बाकी का फर्स्ट ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में तो कोई प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं रहता, क्योंकि दोनों में डेल्टा एन जी 0 है। अब सेकंड ऑप्शन में प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम आपको फॉरवर्ड में जाएगा, प्रेशर को कम करने से बैकवर्ड में आ गया। क्वेश्चन में प्रेशर को कम करना तो बैकवर्ड में आना सेकंड ऑप्शन में, मगर फिफ्थ ऑप्शन में राइट साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर को कम किया तो ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होगा सिस्टम, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्थ ऑप्शन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, in what manner will increase the pressure affect the equilibrium? C plus H2O gives CO plus H2। इसमें C कौन है, सॉलिड है, H2O गैस है, स्टीम है, आइडियल गैस है, CO H2 दोनों भी गैसेस है। इन विच मैनर विल इंक्रीज द प्रेशर, अगर आप प्रेशर को बढ़ाया तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना। किस तरफ गैसेस मोल्स कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे, बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है। जब सिस्टम बैकवर्ड रिएक्शन सिस्टम रिवर्स में आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो गलत है। सेकंड रिएक्शन सिस्टम शिफ्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीजिंग द प्रेशर द सिस्टम टेंड टू मूव वेयर देयर इज ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज। गैसेस मोल्स किधर कम है, लेफ्ट साइड कम है, तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा। ओके, नाउ इंक्रीजेस इन द यील्ड ऑफ H2, ये गलत है, क्योंकि सिस्टम रिवर्स में आ गया तो H2 कंबाइन विथ CO तो H2 कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज द 2 factors, that is the effect of concentration and effect of the pressure. Okay, thank you.